एवं हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, मंगल की प्राप्ति हो, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, सद्धर्म की प्राप्ति हो, समृद्धि की प्राप्ति हो और मनुष्कृति प्रकृति श्रम दूर हो, मिथ्या का क्षय हो, अधर्म का नाश हो। इस काल की शुभकामनाओं के साथ ही शांति धारा की अखंड 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 शांति धारा का अवलोकन करेंगे एवं बीज मंत्रों का श्रवण करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्रीं अहं बम मम हम सम तम बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम श्रीं 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 राम राम ह्रीं ह्रीं गावे गावे नमोते भगवते श्रीमती। ओम ह्रीं क्लीं परम कनिकन जय 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 वै 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 वै। ओम शांति ह्रीं राम ह्रीं ग्लूं ग्लूं ह्रीं ह्रीं ग्लूं 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 राम ह्रीं गावे गावे नमोते भगवते श्रीमती। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य से दया सामने सानिध्य से
Bhakti Prishti Mishti Chudusani Dirgano Prina Nahar Chudusani Aiki Pulina Janik Vismayani Vistava Yanno Shikshat Padi Chudusani Singh Padadi Chudusani Manu Jatan Vigdishan Muzani Manu Jatan Vigdishan Muzani Gabadi Mayam Karnaika Mayam Muzani Manu Jatan Vigdishan Muzani Manu Jatan Vigdishan Muzani पूरे 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 देवी जीवानंदिनम जननंदिनम भक्त्यानंदिनम कुलानंदिनम राजानंदिनम ग्राम नगर कर संवाहिनंदिनम शहरमानंदिनम मध्य प्रदेश वासी मंदिरम शिक्षित नेमी के वासी मंदिरम उत्तर प्रदेश वासी मंदिरम Shivamastu Tathastu Jayastu Tathastu Nityamudgastin Asumudgastin Susidgastin Himidgastin Elenidgastin Shivamudgastin Diryasgastin Elenidgastin Shadthaimin Shri Bal Ayu Aruk Aishar Yudgastin Rim Shrim Ki Madhamasiyam Shanadai Emorientana Brahmsar Shantim Guru Guru Sham Ayurasudharvam Dhiram Dhiram Sariram Vidim Siddhim Idim Samadhim Santitam Prabhanim Kantim Shantim Samadhim Vitartu Bhautam Uttimam Shanti Haram Nami Jinanam Namoi Jinanam Naparmai Jinanam Sabbai Jinanam Nami Jinanam Gurbuddhinam Vibhuddhinam Padashanami Nami Shimnam Shridanam Srimbuddhinam Pattivunam Vaibhudanam Nami Jumadhinam Vyurmadhinam Navdasnam Chavasrinam Nami Abdhanam Nimikima Pushlanam Vyunadi Buddhanam Injanam Charanami Nami Pullashyanam Namakasuna Sivishanam Navdikti Vishanam Nami Rukitavanam Navdikitavanam Tattvanam Mahatavanam Nami Griratavanam Gurganam Gurpaganam Vamshanami Nami Amosi Buddhanam Kidosi Buddhanam Kidosi Buddhanam Posi Buddhanam Nami Saposi Buddhanam Manmalinam Vatpalinam Kaivalinam Nami Kishavinam Sarpasavinam Morsavinam Nishavinam Nami Kinamanasam Padmanam Namosikairam Vaibhudram Adi Mahavir Kainvachamansavi Nityam Satkaitam Sri Panchimina Om Bhurbhuvasva Etat Vidroga Nivarikam Yantram Vayam Parisinchayamam Em Bhurbhuvasva Etat Vidroga Nivarikam Yantram Vayam Parisinchayamam Em Bhurbhuvasva Etat Vidroga Nivarikam Yantram Vayam Parisinchayamam Hinduyikanam Pratipadikanam Yatindrisamanitapodananam Visaikiraita Sekura Sedagya Kavirtu Santim Bhagavan Jinindra Kavirtu Santim Bhagavan Jinindra Kavirtu Santim Bhagavan Jinindra Puji Shantinath Bhagavan ki Adishyan Prabhadinath Bhagavan ki Shri Lakshmi Pradata Mangala Graivarak Shri Vasupuji Bhagavan ki Shri Shanti Pradata Shanti Kuntarinath Bhagavan ki Shri Munishi Vitinath Bhagavan ki Nimishyan Prabhudeminath Bhagavan ki Shri Chintamani Pasnath Bhagavan ki Vartaman Ji
शासन के महावीर भगवान की जय। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। भरत बाहुबली भगवान की जय। ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनि ऋषि राज्यों की जय। आचार्य गुरुवरी स्वान परम तपस्वी परम परदेशी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जन्म की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान प्रति तपो प्रति वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाति नीमी शंकर जी महाराज की जय। बुंदेलखंड के प्रथम जैन दिगंबर आचार्य पूर्वांचल के बाहुबली तंत्र मंत्र यंत्र की याता उपसर्ग विजेता निमित्त यानी आत्मसाहसी बाल ब्रह्मचारी वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य गुरु आचार्य मुनि दीक्षा सागर महाराज की जय। चरसुली पसुलु बफलार्ग की धवल मंगल गानन वाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ महामिय जय। ह्रीं श्री विश्वादि महावीर तुलसी चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान के चरणों से आदिश्चर कुलादिनाथ पदमपुर चंद्रपुर वासुपूज्य वासुपूज्य मुनिसुधा शांतिनाथ मायूवान आदि संपूर्ण जिन गुरुओं के चरणों में शांति के जला दिया स्वाहा श्री आदिनाथ जी के समवसर में हुआ है भारी सब लोगों की मनोकामना पूरी होती सारी नाचो गाओ छत्र चढ़ाओ नमन करो सुखकारी ऐश्वर्य द्रव्य का थाल सजाओ कर्म न सावन भारी। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ भगवान की केवल ज्ञान स्त्री की जला दी द्रव्य आठो जुलीना है अर्घ कर में नवीना है पूजना पाप छीना है भानुमल जोड़ कीना है दीपड़ाई सरस राजे क्षेत्र दसता विशेषाजे साध सत 20 दिन राजे पूजता पाप सब भाजे। सी 5 बरा 5 नव 10 समृद्धि चुस्की शाश्वती के राजे फिर नमः जला दिया पामिति स्वाहा जल श्री महाराज हो। देवरी शिशि मंदरी मंदर बाहु सुबाहु सुजात सिरदोरी विश्वानंदंती श्री गुरु सारथी वैद्य चंद्रन बंधुबाहु परिचिति विदेशी संबंधी विद्वानी थी आठो सुचि सार तुमको अरको अवतार अवतरी मोक्ष 24 ह्रीं श्री सवजी सर्व विरुद्ध सीता श्रेयस वासुपुये विमल आनंद धर्म शांति कुंथारे मरणी मुनिश्रुति नवी देवी पाठ कृपया नमो नमः जरा दे तंदुल प्रसन्न चरु दीप फल अर्घ किया तुमको अर्पो भाव भक्ति जय 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 शिव रमणी जल फल आदि मिलाए गाए गुण भक्त भाव गुण गाए जजो तुम्हारी शिवति वर जिन आवागमन मिटाए मन वचन त्रय धारते जन्म जनामृत जावे पूजो भाव सो श्री पद्मनाथ पद सार पूजो भाव सो कुमति विनाशन शिव अधिकारी छठी 11 प्रतिमाधारी श्रावक बंदो आनंदकारी सातवी आरती सुनिकिन कोई आरती करे करारे सोनर नारी अमर पद पाओ आरती कर सम्मीर सिकर की और करू की लास की चंपा पावापुर जी की और करूने नीचे की ये विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख कीजे सोनी को दीपक कपूर की बाती जगमग मोरे सारी राती यह विधि मंगल आरती कीजे जय। आके हमारे हैं दया सागर महाराज हमारे नगरी पधारे हैं था
सजा सजा कर दरदारी आए, ऐसा लगा कि जैसे स्वयं महावीर प्रभु आए। बलिहारी बलिहारी इन पर प्रमाण हमारे हैं, दया सागर महाराज हमारे नगर पधारे हैं, दया सागर महाराज हमारे नगर पधारे हैं। जोड़ी परम पूजाचार्य गुरु श्री दया सागर जी महाराज की जय। और सभी परम पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं, गुरुदेव अपनी अमृत वाणी से हम सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करिए, हम सभी का कल्याण करें। नमोस्तुते। ओम नमः सिद्धिभ्यां, ओम नमः सिद्धिभ्यां, ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गोतिमोगणी, मंगलम कुंद कुंजार्यो, जीनि धर्मोस्तु मंगलम। शर्व मंगल मांगल्यम, शर्व कल्याणि कारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासिनं, जैनं जयतु शासिनं, जैनं जयतु शासिनं। बोलो अहिंसा में जिन धर्म की, बोले विश्व धर्म की, मानव धर्म की, वर्तमान जिन शासन की, महावीर भगवान की, आदिश्वर प्रभु आदिनाथ भगवान की, द्वादशांगी जिन वाणी माता की, आचार्य गुरुवरीश्वर परम तपस्वी परम तेजी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जन की त्यागी स्वतंत्र सेनानी, ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी सगर जी महाराज की जय। पिछले दिनों में आपको ओम ह्रीं श्रीं क्लीं तीन अक्षरों का संक्षिप्त सारांश बताने का प्रयास किया। ये अक्षर हमारे शांति धारा के प्रारंभ के अक्षर हैं। इसी प्रकार से आगे के अक्षर हैं एम शब्द। एम शब्द हमारे आपके लिए ऐश्वर्य को प्राप्त कराने के लिए, कीर्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त कराने के लिए, ऐश्वर्य को प्राप्त कराने के लिए हमें यह एम शब्द हमें काम में आता है। हमें ऐश्वर्य मिल जाए माने हम अरहंत जैसे महापद को प्राप्त कर सके। प्यारे बंधुओं, ये बीजाक्षरों में कितना महान महान अर्थ है और सारांश छिपा हुआ है। उसके उपरांत अरहम शब्द है। अरहम शब्द है अरहंत परमेष्टि से संबंधित है। हम अरहंत परमेष्टि को याद करें। हमारे अरहंत परमेष्टि ने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है। ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी, वेदनी और अंतराय, ऐसी 4 घातिया कर्मों को जिन्होंने घात करके समुद्र में विराजमान हो गए, अरहंत पद को प्राप्त कर लिया। जिनके पास अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये 4 महागुण उन्हें प्रकट हो गए। ऐसी हमारी अरहंत परमेष्टि। अरहंत परमेष्टि के लिए हमारे आचार्यों ने कहा है, उन्हें नमो जिनानम, नमो ही जिनानम, नमो परमो ही जिनाम आदि 64 रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हमारे अरहंत परमेष्टि को 64 रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जब हम अरहंत परमेष्टि को याद करें तो उनकी
64 रिद्धियों को याद करें। वह 64 रिद्धियां कौन कौन सी हैं हमें मालूम नहीं, हम भूल जाते हैं। आप अपने जब पूजा प्रारंभ करते हैं, पूजा के अंदर स्वस्ति मंगल पाठ जब करते हैं तो उन 64 रिद्धियों का वर्णन पूजा करने से पहले आप 64 रिद्धियों को स्मरण करते हैं, उसके उपरांत आपकी पूजा प्रारंभ होती है। तो ऐसे 64 रिद्धिधारी हमारे अरहंत परमेष्ठी हुआ करते हैं। अरहंत केवल ज्ञान रूपी रिद्धि केवली प्रभु को होती है। शेष 63 रिद्धियां हमारे दिगंबर साधु, हमारे अरहंत परमेष्ठी भी दिगंबर ही है। और दिगंबर साधु 6 और 7वें गुरु स्थान वर्ती जो साधु हुआ करते उन्हें ज्ञान रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, अच्छी रिद्धि आदि प्राप्त होना शुरू हो जाती है। और अंत में जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो वह केवल ज्ञान रिद्धि भी अरहंत प्रभु को प्राप्त होती है। इसलिए 64 रिद्धियां, संपूर्ण रिद्धियां अरहंत प्रभु के पास हैं। इसलिए मैं जब शांति धारा बोलता हूँ तो शांति धारा के अंदर अंत में मैं उन रिद्धियों का भी उल्लेख करता हूँ और उन रिद्धियों का भी उच्चारण करके हम प्रभु की रिद्धियों को प्राप्त करने की भावना करता हूँ कि हे भगवान, ये रिद्धियां मेरे को भी प्राप्त हो। केवल प्यारे बंधु रिद्धियों की उन्हीं को रिद्धियां प्राप्त है, मेरे को प्राप्त हो जाए, मेरे को प्राप्त हो जाए तो नहीं होगी। तिजोरी में नोट रखे हुए हैं, तिजोरी में माल रखा हुआ है, चाबी आपके पास है, लेकिन आप कहोगे तिजोरी में से मेरे को सारे नोट मिल जाए, सारी सामग्री मिल जाए, सो नहीं मिलेगी। आपको चाबी लगानी पड़ेगी, चाबी खोलनी पड़ेगी और गेट खोल के फिर आपको क्या क्या चाहिए है वह आपको चॉइस करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अरहंत प्रभु एक तिजोरी है। अरहंत प्रभु क्या है? एक तिजोरी है और उस तिजोरी में सारी रिद्धियां भरी हुई है, सारा माल भरा हुआ है, अनंत ज्ञान के भंडार है, अनंत दर्शन के भंडार है, अनंत सुख और अनंत वीर के भंडार है, उस तिजोरी में भरे हुए हैं। अब आपको क्या क्या चाहिए है, आपको भी वही चुनना पड़ेगा। आप करें कुछ नहीं, मेहनत तक आदि करें कुछ नहीं, और सारे तीनों लोगों की संपत्ति संपूर्ण अरहंत प्रभु के गुणों को हमें सहज रूप से खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते मौज मस्ती करते हुए फिर हम उनकी रिद्धियों को चाहे, उनके गुणों को चाहे, तो प्यारे बंधु हमें वो रिद्धियां, वो गुण, वो महिमा हमें प्राप्त होने वाली नहीं है। प्यारे बंधु, हमें ऐसे अरहंत प्रभु के गुणों को प्राप्त करना है तो उन जैसे बनने का हमें प्रयास करना चाहिए। बम बम हम सम तम बम 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 मम मम हम सम सम तम तम बम बम यम यम श्री 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 में राम राम धीम धीम आदि ये बीजाक्षर है। इन बीजाक्षरों में भी एक एक बीजाक्षर में महान महान
शक्तियां और महान महान रीतियां छिपी हुई हैं, लेकिन इन बीजाक्षरों के लिए हमारे आचार्यों ने कहा है अगर आपको भूमि शुद्धि करनी है तो भूमि शुद्धि की भावना करके इन बीजाक्षर मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो भूमि शुद्धि संबंधी देव आकर उसमें समावेश हो जाएंगे। अगर आपको जल शुद्धि करनी है तो जल शुद्धि संबंधी देव उन बीजाक्षरों में आ जाएंगे। अगर आपके लिए आपके अंग शुद्धि आदि करनी है तो उसी संबंधी वो देवी देवता उसमें आ जाएंगे। लेकिन ये बीजाक्षर हर जगह प्रयोग में आते हैं और हर जगह इनका उपयोग हमारे आचार्यों ने विशेष रूप से वर्णन किया हुआ है। राम राम कि हमें प्राप्त हो ऐसी भावना करते हुए नमो अर्थे हम अर्हंत परमेष्टि को पुनः नमस्कार करते हैं। अर्हंत प्रभु को नमस्कार किए बगैर हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, इसलिए आपको सबसे पहले ओम शब्द में भी अर्हंत प्रभु है और यहाँ पुनः कहते नमो अर्थे। हे भगवान, हे नारंत प्रभु, मैं आपके चरणों में पुनः नमस्कार करता हूँ। भगवते, हम भगवान को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने संपूर्ण आठों कर्मों का नाश कर दिया है। भगवान किसे कहते हैं आपने कभी चिंतन किया? भगवान शब्द में कितने अक्षर हैं? भगवान शब्द में कितने अक्षर हैं? 4। और कोई 3 तो नहीं है, विचार करो। 5 तो नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 4 ही आपकी ओर से। आप सभी की सहमति के अनुसार कितने अक्षर हैं? 4। और मेरी सहमति के अनुसार 5 अक्षर हैं। भा, गा, वा, आ और ना, ये 5 अक्षर हो गए। इन 5 अक्षरों को हमारे आचार्य कहते हैं ये जगत के पंचभूत तत्व हैं। इन 5 पंचभूत तत्वों में ये सारा संसार का जीव परिभ्रमण कर रहा है। पंचभूत तत्वों से परे होना है। ये पंचभूत तत्वों से परे हो गया। भा माने भूमि, भा माने भूमि, जिन्हें भूमि की आवश्यकता नहीं रही ऐसी हमारी वह भगवान है। गा, गा माने गगन, आकाश की जिन्हें आवश्यकता नहीं रही वह हमारे भगवान है। वा माने वायु, जिन्हें श्वास की आवश्यकता, वायु की आवश्यकता नहीं रही ऐसी हमारे भगवान है। आ माने अग्नि, जिन्हें जठराग्नि आदि की भी आवश्यकता नहीं रही ऐसे हमारे भगवान हैं। ना माने नीर, नीर माने पानी, जिन्हें पानी की भी आवश्यकता नहीं रही ऐसी हमारी भगवान हैं। ऐसी भगवान जिस संसार के अंदर पंचभूत तत्व हैं, उन्हें पंचभूत तत्वों के माध्यम से हम और आप इसे भूतल पर इंसान या त्रियंची या मनुष्य या नारकी देव आदि बनकर परिभ्रमण कर रहे हैं। पंचभूत तत्वों से रहित जो हो जाए वही भगवान है। ऐसे भगवते अर्हते, हम ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं। अर्हंत प्रभु को नमस्कार करते हैं। श्रीमती जो सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है,
हम उन्हीं को नमस्कार करते हैं। ओम ह्रीम क्रोम। ओम में पुनः पंच परमेष्टि आदि को नमस्कार करते हुए, ह्रीम में नमस्कार करते हुए 24 तीर्थंकरों को, क्रोम शब्द एक ऐसा शब्द है जो आपके अंतरंगी परिणामों में ये मलिनता छिपी हुई है, ऐसी मलिनता को नाश करने में ये समर्थ होता, उसे क्रीम शब्द, एक क्री शब्द और क्रीम शब्द है। तो ये हमारे क्रोम शब्द है, ये हमारे अंतरंग के कसाओं को नाश करने में समर्थ है। ओम ह्रीम क्रोम मम पापम। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में पुण्य नहीं किया है, मैंने पाप ही पाप किए हैं, ऐसे हमारे पाप ओम ह्रीम क्रोम मम पापम में खंड खंडे हमारे पाप कैसे हो, खंड खंड टुकड़े टुकड़े हो जाए, छिंदे छिंदे हमारे पाप छेद छेद हो जाए और हमसे दूर दूर हो जाए। ऐसे हमने पाप कैसे कैसे पाप किए, कभी विचार करो। पाप शब्द कहकर तो हम एक सेकंड में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन प्यारे बंधु पापों पर विचार तो करो। हमने हिंसा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग 1 प्रकार की है और बहिरंग 4 प्रकार की है। तो वह 4 प्रकार की कौन कौन सी? आरंभी, उद्योगी, संकल्पी और विरोधी। इस 4 प्रकार की हिंसाएं हुआ करती हैं। हमने 4 प्रकार की हिंसाओं में से आज तक विचार करो कौन सी हिंसा का त्याग किया है? आपने कौन सी हिंसा का त्याग किया? आरंभी हिंसा का त्याग किया? विचार करो। आरंभी हिंसा मतलब घर दुकान बनाना, मकान बनाना, व्यापार करना और घर में दाल रोटी साग सब्जी बनाना, रसोई आदि की झाड़ू पोछा के कार्य करना, ये सब क्या है? आरंभी हिंसाएं। किसने छोड़ा? किसी ने छोड़ा? नहीं छोड़ा। और विशेष रूप से हमने जो देखा है, समझा है, जब उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, जब उपवास व्रत करते हैं तो उस दिन तो आरंभ सारंभ दुनिया के कार्यों से विराम करके धर्म ध्यान में लीन होने के लिए कहा है। लेकिन उन्हीं दिनों में हमारी माता बहनें जब खाली है, खाना पीना नहीं है, बहुत काम बच जाते हैं, तो समय खाली रहता, क्या करूं? ये सफाई कर लो, ये सफाई कर लो, ये सफाई कर लो, ये धूप में डाल के सुखा लो, आदि आदि दुनिया के कार्य आरंभी हिंसा और ज्यादा बढ़ा देते। तो प्यारे बंधु, आरंभी हिंसा में हमें विराम लगाने की आवश्यकता है और इसकी उपरांत उद्योगी हिंसा। कौन व्यापार छोड़ने को तैयार है? कौन व्यापार छोड़ने के लिए तैयार है? कौन अर्थ कमाने में पीछे हटने को तैयार है? कोई तैयार नहीं है। तो आरंभी हिंसा भी नहीं छोड़ रहे,
उद्योगी हिंसा भी नहीं छोड़ रहे, और विरोधी हिंसा आ जाए, कोई लड़ाई झगड़ा आपस आ जाए तो हम मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारे लिए विरोधी हिंसा भी नहीं छूट रही, और फिर संकल्प हिंसा हमारी बालाजी की रही। हमने संकल्प हिंसा का त्याग किया। मैं इसे पूछना चाहता हूं कि पुनः आप अपने दिल दिमाग पर हाथ रख के विचार करके बोलो कि आपने संकल्प हिंसा का त्याग किया कि नहीं किया। आपके सिर में जू हो जाते हैं, आप मेडिकल पर जाते हैं और क्या मांगते हैं? बिल्कुल खुलेआम चींटियां हो जाए तो चींटी मार पाउडर, चींटी मार दवाई, खटमल हो जाए तो खटमल मार दवाई, सिर में जू हो जाए तो जू मारने की दवाई, और मच्छर मारने की दवाई, आदि आदि इस प्रकार से हम खरीदने के लिए तैयार है। संकल्प हिंसा। आपके घर में नल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? सरकार की ओर से पानी आ रहा है, टोटी बढ़िया बढ़िया लगा रखी है। हम दयालु प्राणी हैं, ऐसा प्रेमी है, हमने क्या क्या नीचे से एक थैली लगा दी, थैली लगा दी, बांध दी, ऊपर पक्की कर दी, पानी ऊपर से भी ना निकल पाए, पानी छन के आ रहा है। आपका गीजर लगा हुआ है, गीजर में पानी कैसा पहुंच रहा? छना कि अनछना? अनछना पहुंच रहा है। और जो टोटी लगाई हुई है जिसमें छन्ना लगा दिया है, आपने उस छन्ने से जब पानी की आवश्यकता था आपने टोटी खोली और पानी आया। पानी आने के उपरांत आपको पानी की आवश्यकता कम हो गई नहीं है तो आपने पानी टोटी बंद कर दी। आपकी बाल्टी लोटा गिलास भर गया, टोटी बंद कर दी। अब जो जीव थे जो स्वतंत्र टंकी में भ्रमण कर रहे थे, वो टोटी के माध्यम से बाहर निकलना चाहे और आपने छन्ना लगा दिया तो आपके पात्र में भी वो जीव नहीं आ पाए और आपके वापस भी नहीं जा पाए, वो छन्ना में ही जीव अटके रहे। क्या हुआ? अब थोड़ी देर में हवा लगी, छन्ना सूखने लगा। बेचारे जीव सुकुड़ते सुकुड़ते छन्ना में चिपक गए और चिपक के क्या हुए? राम नाम सत्य स्वर्ग को सिधार गए। अब उनका जो शेष कलेवर है, जो शरीर है, वह छन्ने में चिपक गया। अब जब दोबारा आप पानी लेने को जाते हैं, टोटी खोलते हैं, धीरे धीरे वो छन्ना भर जाता, पानी निकलता नहीं है। तो क्या करते हैं? सामने शीशा हो रहा है, इसे दबा देते। उस छन्ने को आप इस प्रकार से मल देते हैं, थैली को मलते हैं, पूरा जो कलेवर था पुराने मरे हुए जीवों का वो आपकी बाल्टी में, आपकी पात्र में आ गया। ठीक इसी प्रकार से पुनः पुनः करते रहते हैं तो कितने जीवों की खुलेआम हिंसा कर रहे हैं। वो कसाई तो 1 2 4 जीवों को मारते होंगे,
10-20 जीवों को मारते होंगे, लेकिन हम उनसे बड़े, कितने बड़े कसाई हैं, कितनी बड़ी हिंसा कर रहे हैं हम। प्यारे बंधु, आज तो धीरे धीरे परंपरा, पहले की परंपरा में देखा था मैंने, अपने हाथों से किया है, कभी बाल्टी से पानी निकालते थे, छानते थे, छानने के बाद बिछाने उसी बाल्टी में वापस पानी लेते थे और धीरे से उसमें एक छलना कड़ा लगा रहता था और कड़े को धीरे से छोड़ते थे, पानी में पहुंचकर अपने आप बाल्टी उल्टी हो जाती थी और उल्टी होकर वो बचने को जीवे पानी में पहुंच जाते थे और खाली बाल्टी आपकी वापिस आती थी। लेकिन ये सारी परंपराएं अब नष्ट होती चली जा रही हैं और साथ ही साथ ज्यादा गहराई में प्रवेश करेंगे तो हर जगह गिलानी उत्पन्न होने लगती है। आज जिनेंद्र भगवान का आपको अभिषेक करना है, पूजा करना है, शुद्ध पवित्र जल चाहिए, कौन लाएगा? कौन लाएगा? नौकर, जिसे आप पुजारी कहकर संबोधित करते हैं। पुजारी जी ने वह पानी कैसे भरा है, कैसे कुएं से निकाला है, कैसे छाना है, कैसे गर्म किया है, इस पर आपने भरोसा कर लिया कि वह पानी पूरा शुद्ध पवित्र है। लेकिन प्यारे बंधुओं, कई बार विचार आता है और ये आंखें थोड़ी, साधुओं की आंखें चंचल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कौवे की समान साधुओं के नेत्र होते हैं और वे कब कहां से कितने महीनता से बिल्कुल ना देखते हुए भी देख लेते हैं। उसी तार से साधु का चौका आप पहले हर घरों में शुद्धियों से भोजन बनाया जाता था स्वयं के लिए। अब स्वयं के लिए शुद्धि का भोजन नहीं हजम होता। क्या कहा मैंने? गलत नहीं कहा। शुद्धि का भोजन हजम नहीं होता। अब साधुओं के लिए स्पेशल शुद्धि का भोजन बनाया जाता है। अब वो उस चौके में कैसे तो पानी आया, कैसी दूध आया, कैसी अग्नि जलाई गई। जिनने किया उनने तो शुद्धि बोलने का काम ही नहीं रहता, क्योंकि वो तो पुजारी लोगों ने भर दिया, हो गया काम। उसकी उपरांत इसी प्रकार से गहराई में प्रवेश करते चले जाओ तो आपको एक समय वह आ जाएगा कि आप हर जगह गिलानी में प्रवेश कर जाओगे तो आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसलिए प्यारे बंधु, हमारे आपके लिए मम पापम, मैंने जो पाप किए हुए हैं वह पाप मेरे खंड खंड हो, दूर हो। ऐसे पापों से हमें छुटकारा प्राप्त करे। तो प्यारे बंधु, हमारे आपके लिए ये शांति धारा में मैं अपनी अलग से नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी ओर से अलग से एक शब्द नहीं कह रहा हूं। जो जिनवाणी में उल्लेखनीय है, जो शांति धारा में उल्लेखनीय है, उसका मैंने संक्षिप्त
विस्तार करके आपको बताने का भाव किया। राधा दीदी मेरे से बहुत दिनों से कह रही थी कि महाराज शांति धारा का अर्थ बताओ, शांति धारा का अर्थ बताओ। मैंने विचार किया कि कम समय में और थोड़ा सा है तो मैं आपको बताने का प्रयास करूं, लेकिन मैं इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। उसके उपरांत भी आपके 10 दिन में ये शांति धारा का अर्थ शायद पूरा होना संभव भी नहीं है। कहीं मेरे को गाड़ी तोड़ानी पड़ेगी। अंत में जाके सब कुछ का नाम, प्रतिपाल का नाम बोल के मैं आपको फ्री कर दूंगा। लेकिन मम पापम खंड खंड हन हन गए गए पच पच बजे बजे। प्यारे बंधु, ये हमारे आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण बीजाक्षर मंत्र हैं, लेकिन हम और आप देखते हैं हम तो आपको बहुत कंट्रोल करके, सावधान करके शांति धारा के बीजाक्षर मंत्र का उच्चारण सुनाने का प्रयास करता हूँ। अन्यथा मैंने कई जगह देखा है यहाँ शांति धारा हो रही है और यहाँ हमारे प्रधान के आराम साराम दुनिया के कामों में हम व्यस्त बने रहते हैं। शांति धारा की ओर मेरा कोई विशेष रुझाव नहीं है और इसी बात से आपको अपने जीव धर्म में एक मत ऐसा निकल गया है, एक मत ऐसा निकल गया है जिसे कहते हैं कांची पंथ। उस कांची पंथ में शांति धारा भगवान की करते ही नहीं है। शांति धारा का उच्चारण बोलोगे करते ही नहीं है। तो प्यारे बंधु, हम अपने धर्म से कहां कहां कौन कौन से निमित्त कारणों को पा करें धर्म से हम विमुख होते चले जा रहे हैं। हमें अपने जीवन को अगर कहीं पुण्यमय करना है तो हमें अपने जीवन में विचार करना है कि हमारे लिए जो हमारे पूर्व आचार्यों ने उल्लेख किया हुआ है, उन उल्लेखों को स्वीकार करते हुए हम अपने जीवन को पुण्यमय करें, अपने जीवन के पापों का खंड खंड हनाने गए गए पच बचे बचे करने का प्रयास करें। बड़ी महावीर भगवान की जय। बड़े गादसाग्नि जिन वाणी माता की जय। बड़े आचार्य गुरुवरी स्वाति परम तपस्वी चरण परम हितैषी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाति नेमी जी महाराज की जय। शरणागयेषु पावेषु ते देवदेवारिवन्तिको पुरुषेवं निर्गन्ति दया पालो सदा यही मोक्ष का। जय सागर जी महाराज के चरण में अलग पद प्राप्त है। गंधर्व काल की स्वाहा। नमोस्तुते, नमोस्तुते।